Good morning, children. Today we are going to study about pollen pistil interaction. In the previous lecture, we have already discussed about outbreeding devices. Now, today we are going to study about pollen pistil interaction as well as artificial hybridization. So, now let us start with the topic. Now, as you can see on the screen, pollen pistil interaction. Now, pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion or inhibition of pollen grain. Pollen pistil interaction is a dynamic process which involves pollen recognition followed by promotion or inhibition of pollen grain. As we have already discussed during pollination, what happens is the pollen grain it reaches the stigma of the plant as such. Now, it may be possible that a pollen grain reaches the right kind of plant, that is, plant belonging to the same species. Now, it can be also that pollen grain reaches the stigma of a plant which do not belongs to that species. So that will not be a right kind of interaction. Right kind of interaction means a pollen grain from a species A, it reaches the stigma of the species A belonging to the same plant or to a different plant, but species should be same. Now, if there is a case of self-incompatibility, then it will also be called as a wrong kind of interaction. That means a pollen grain reaches the same plant, stigma of the same plant, but that plant has is self incompatible. That means it is not ready to accept the pollen grain from the same part, that is anther of the same plant. It is not ready to accept. That means self pollination cannot take place in that plants. In that case, it will be assumed that it is not a right kind of interaction. So a right kind of interaction is desired. So in that particular case, a pollen grain from a particular plant, it should reach the another plant belonging to the same species. Then it is called a right kind of interaction. Now what happens when the pollen grain reaches the stigma as such? Now pollination does not guarantee the transfer of right kind of pollen grain to the stigma as such. Often self-incompatible pollen grains fall on the stigma. ये हम लोग ने already आपको अभी बताया हुआ, मैंने already बताया हुआ है. Now pollen has the ability to pistil has the ability to recognize the pollen grain, which is very true. Now if wrong type of pollen grain happens to reach the stigma of the plant, there will be a rejection. That means that pollen grain will not be able to form a pollen tube. Now, if suppose a pollen grain reaches the stigma and it happens to be the right kind of pollen grain, then sugary secretion will be produced on the stigma that is already present, and because of that the pollen grain will start, that will stimulate the pollen grain to germinate and form a pollen tube. Now आप लोगों ने pollen grain का डायग्राम पढ़ा देखा होगा, बाहर का एक्साइन लेयर है और अंदर का इंटाइन लेयर है. ये इंटाइन लेयर है, दिस इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ pollen tube. Now this pollen tube comes from one of the germ pore. हमने आपको बताया था एक्साइन लेयर में कोई एक पर्टिकुलर एरिया होती है जहाँ पे एक्साइन स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं होता, वहां से जो है pollen tube बाहर निकलता है, इमर्ज करता है. Now let us, this is again a kind of pollen pistil interaction which I have already told you. Now ये देखिए किस तरह से pollen grain जो है pollen tube फॉर्म कर रहा है, यहाँ हमने आपको ये बताया. ठीक है, ये डायग्राम है, दिख रहा है आपको pollen grain किस तरह से pollen tube फॉर्म कर चुका है. अच्छा, जनरेटिव सेल जो वेजिटेटिव सेल होता है डिवाइड्स इनटू टू, फॉर्मिंग टू मेल गैमीट्स कंसिस्टिंग ऑफ टू न्यूक्लियाई आल्सो. नाउ जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है उसको ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं, वो डिजनरेट कर जाता है, सिर्फ 2 मेल गैमीट बचते हैं. नाउ ऑल काइंड ऑफ इंटरेक्शन which starts from pollen grain reaching the stigma until the pollen tube enters inside the ovule, all such events in between the two are called as pollen pistil interaction. That is very important, इसको आपको याद रखना होगा.
कहने का मतलब पॉलन ग्रेन जब से पहुंचना शुरू करता है स्टिग्मा पे आ गया, और जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ वो जितने इंटरेक्शन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। वो याद रखना जरूरी है आपको। ओके, नो, पॉलन ग्रेन क्या पॉलन ट्यूब बनाएगा या नहीं बनाएगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा का इंटरेक्शन कैसा हुआ है। दोनों सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, केमिकल्स। पॉलन ग्रेन भी केमिकल सिक्रीट करता है और स्टिग्मा भी केमिकल सिक्रीट करता है। अगर ये दोनों केमिकल्स ऐसे होते हैं जो आपस में इंटरेक्ट करके एक इंटरेक्शन के बाद ये डिसाइड होता है कि पॉलन ग्रेन जो है पॉलन ट्यूब बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ये इंटरेक्शन दो तरीके का हो सकता है। केमिकल इंटरेक्शन, जो केमिकल पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा से बाहर निकलते हैं, दे कम आउट and interact with each other. Now outcome of interaction can be two, either positive interaction or negative interaction. Positive interaction, in case of positive interaction the pollen tube will be formed. In case of negative interaction pollen tube will not be formed. Now ये भी डिपेंड करता है कि pollen viability कितनी हो सकता है। right kind of pollen grain has come to the stigma, but the duration of which, जो ड्यूरेशन होता है पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए कि हाँ पॉलन ग्रेन केवल आधे घंटे के अंदर इट शुड रीच द स्टिग्मा, वो हो चुका है, वो आगे ज़्यादा टाइम हो चुका है तब पॉलन ग्रेन पहुंचा है, यानी अब पॉलन ग्रेन अनवाइबल है, तो ऐसी कंडीशन में वो पॉलन ट्यूब फॉर्म नहीं करेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नाउ पॉलन ट्यूब जो है, जब पॉलन ग्रेन जो है जब पॉलन ट्यूब बनाता है तो पॉलन ट्यूब बड़ा होता जाता है और इट कंटेन्स टू मेल गैमीट्स, और माइक्रोपाइलर एंड से वो एंटर करता है, उसमें दो मेल गैमीट्स होते हैं। ये पहले सिनर्जीज में एंटर करते हैं, सिनर्जीज में एंटर करने के बाद ये जो है वो एक एग सेल से मीट करता है और एक जो है वो फीमेल पोलर न्यूक्लियाई से मीट करता है। जो एग सेल से मेल गैमीट मीट करता है जाइगोट फॉर्म होता है, और जो फीमेल पोलर न्यूक्लियाई से मीट करता है उससे एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। ओके, तो ये तो हो गया पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में। हमने आपको एक बार बता दें, सिनर्जीज कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट करते हैं जो पॉलन ट्यूब को एक डायरेक्शन देते हैं ताकि वो बेंड होके पॉलन ट्यूब जो है सिनर्जीज के पास पहुंच जाए पॉलन ट्यूब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट होता है सिनर्जीज में जो उनको एक डायरेक्शन देता है, केमिकल रिलीज करता है, और पॉलन ट्यूब जो है बेंड करके कहाँ पहुंच जाते हैं, और सिनर्जीज में एंटर कर जाते हैं उनके दो मेल गैमीट्स। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन विच इज अचीव बाय फॉलोइंग टेक्निक्स। सबसे पहले इमैस्कुलेशन होता है। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो मेल पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है। रिमूवल ऑफ एंथर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन बिफोर द एंथर गेट्स मैच्योर। नाउ बैगिंग में क्या होता है, दूसरे फ्लावर में अब सिर्फ फीमेल पार्ट बचा है, उसको जो है हम पॉलिथीन से कवर अप कर लेते हैं ताकि और कोई दूसरा जो पॉलन ग्रेन है फ्रॉम द सेम प्लांट वो वहाँ डिपॉजिट ना हो जाए। यानी इसका मतलब हम जीटोनोगैमी को प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि फ्लावर से तो आपने जो है एंथर रिमूव कर दिया है। अनडिजायर्ड पॉलन ग्रेन वहाँ ना पहुँच जाए स्टिग्मा पे और जर्मिनेट पॉलन ग्रेन ना बना ले, सॉरी पॉलन ट्यूब ना बना ले और जर्मिनेट ना कर जाए। इस वजह से हम उसको क्या करते हैं, बैग करते हैं और पॉलिथीन से की शीट से किया जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद डिजायर्ड पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे डस्ट कर देते हैं और फ्लावर को फिर से रीबैग कर देते हैं। तो दैट इज वेरी एसेंशियल। ये देखिए इमैस्कुलेशन हम लोग सीजर से कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट एज सच, एंड देन उसको ढक देते हैं, बैग कर देते हैं। उसके बाद उसको फिर से खोलते हैं और डिजायर्ड पॉलन ग्रेन उस पर डस्ट कर देते हैं और फिर रीबैग कर देते हैं। और टैग लगाना बहुत ज़रूरी है। टैग में कई सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम बोलते हैं टैगिंग। टैग में ये इंफॉर्मेशन होती है जैसे कि आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं कि किस डेट में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ है, वो सारी इंफॉर्मेशन उस पर टैगिंग में लिखी रहती है। किस डेट में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ है, किसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, कौन सा प्लांट इन्वॉल्व है, किस तरह का ये प्लांट है, कहाँ से पॉलन ग्रेन जो है वो किया गया है, किस प्लांट का पॉलन ग्रेन डस्ट किया गया है, उसका टाइम और डेट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ये सारी बातें उस वाइट पेपर पे चिपकी हुई होती हैं और कोई भी देख कर ये बता सकता है कि आखिरी एक्सपेरिमेंट क्यों हुआ है, कब हुआ है, क्या मोटिव है इसका। तो टैगिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
तो लेट अस स्टार्ट विद द होमवर्क असाइनमेंट। क्या क्या होमवर्क में दिया गया आपको? एक्सप्लेन व्हाट इज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, इज वेरी एसेंशियल। व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉन्टिन्यूअस डायलॉग प्रोसेस। आप याद रखिएगा कॉन्टिन्यूअस डायलॉग प्रोसेस है। ये डायलॉग प्रोसेस ये डिसाइड करता है कि पॉलन जो ग्रेन जो है पॉलन ट्यूब फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, और करेगा तो क्यों करेगा। क्योंकि उनके उनके दोनों जो है सिक्रीट करते हैं केमिकल जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि पॉलन ग्रेन जो है वो पॉलन ट्यूब बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो ये आपको पूरा बताना है। हाउ अंडरस्टैंडिंग मैकेनिक्स ऑफ पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कैन बी बेनिफिशियल टू अस। अगर हम ये समझ जाएं कि पॉलन ग्रेन में कौन सी केमिकल सिक्रीट कर रहा है और पिस्टल कौन सा केमिकल सिक्रीट कर रहा है, तो हम जो सेल्फ इनकम्पैटिबल पॉलन ग्रेन होते हैं, जो पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पे जाके जर्मिनेट नहीं कर सकते, वहाँ भी हम कंपैटिबिलिटी केमिकल्स आर्टिफिशियली बाहर से डाल देंगे और पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर जाएगा। तो ये इसका बेनिफिशियल पार्ट है, ये इसका बेनिफिट है। हमें जानना ज़रूरी होता है कि कौन से केमिकल्स, आप साइंटिस्ट से जानने की कोशिश करें कि आखिर कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो पॉलन और पिस्टल के इंट्रैक्शन में पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं, जो ये अलाउ करते हैं कि पॉलन ग्रेन जो है पॉलन ट्यूब फॉर्म कर जाए। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, उन्होंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आई होप यू लाइक माई टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।